تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی آواز اٹھائی۔ سینیٹ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل جاوید نے کہا کہ اقوام متحدہ اب اسلاموفوبیا کے خلاف دن مناتا ہے، اس کے لیے بانی پی ٹی آئی نے جدوجہد کی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ قائد اعظم کی کاوشوں سے مک بنا ہم مذمت کرتے ہیں۔ یوم آزادی کے اشتہار میں پورے ٹبر کی تصویر تھی، قائد اعظم کی نہیں تھی۔ ہم ایوان میں قائد اعظم کی تصویر لے کر آئے ہیں۔ تو جو آج یہ ریزولوشن آیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ سب نے اس کی تائید کی ہے، اور یہ بہت خوشائن ایک چیز ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں کہ اسلاموفوبیا جو تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کے حوالے سے اقوام عالم میں اگر کسی ایک لیڈر نے آواز اٹھائی تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کی آواز اٹھائی اور یہ باور کروایا کہ یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو ہر سال اینٹی اسلاموفوبیا ڈے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور عمران خان صاحب نے اس پہ دل کے ساتھ پوری کوششیں کی اور پھر پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھایا۔ ہمیں اس سلسلے میں اس ایک چیز کے اوپر سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب آتا ہوں سر میں کہ جو بانی پاکستان، فاؤنڈر آف دا نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی تصویر آپ کے اوپر یہاں پہ سامنے ہے، جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور ہم آج یہاں سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا اشتہار لگایا 14 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں، اپنے پورے ٹپر کی اس میں تصاویر چھاپی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ آج اس ہاؤس کے اندر ہم سب اپنے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کوئی ایک ڈاکومنٹری نہیں چلی 14 اگست، یوم آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کا پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں جشن آزادی منانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے کہ ہمیں اس ملک میں انصاف قائم کرنا ہے، اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو صحیح معنوں میں کہلائے قائد اعظم کا پاکستان۔ ہمیں حقیقی آزادی جس کی ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، وہ حقیقی آزادی ہے اس ناانصافی سے آزادی، اس غربت سے آزادی، حقیقی معنوں میں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے ہم وہ بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ اپنے اشتہار سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہی نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شرمناک ہے کہ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس اشتہار سے نکالا گیا، اور یہ اشتہار انہوں نے اپنی کوئی ذاتی پیسے سے نہیں لگایا۔ یہ ہر چیز کے اشتہار لگاتے ہیں، باتھ روم بھی کھولتے ہیں، پبلک ٹوائلٹ اس کے اوپر بھی اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، کوئی چیز ہو وہاں لگا دیتے ہیں۔ یہ اشتہار جو یوم آزادی کے حوالے سے ہے تمام اخبارات میں ہر جگہ، یہ ان کے اپنے پیسوں سے نہیں لگا، ذاتی پیسوں سے نہیں لگا، یہ ٹیکس پیئر کے، اس عوام کے پیسوں سے لگا ہے، اور اس میں اس ملک کو بنانے والے کی تصویر نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، بہت سے مستحق لوگ جنہوں نے اس مارکہ حق میں ہماری افواج، ہماری ایئر فورس، سب نے جو ایک اتنی بڑی فتح حاصل کی ماشاءاللہ، اور جس طرح سے فضاؤں میں، سمندروں پر، زمین پر ہمارے جوانوں نے اس ملک کا دفاع کیا اور فتح حاصل کی، وہیں پر بیانیے کی اس جنگ میں عمران خان کے سوشل میڈیا ٹائگرز نے ڈیجیٹل سپیس کے اندر
पाकिस्तान के लिए भरपूर फतह हासिल की। वो कैसे? आप उठा के पूरा डेटा देखें, यहाँ तो ये लफ्ज़ तक नहीं बोल रहे थे, और वहाँ पे वो इमरान खान कैदी नंबर 804 जेल से पैगाम देता है कि कौम यकजा हो, पूरा मुल्क यकजा हो। यकजहती की बात की इमरान खान ने, और अपने सारी पार्टी को हिदायत दी कि हमने मोदी के झूठों को, भारत के झूठों को पूरी दुनिया में बेनकाब करना है, और ऐसा करके दिखाया। ये सारा रिकॉर्ड पे मौजूद है। सोशल मीडिया आज इसकी ताकत है, वहाँ पे जो पाकिस्तान का दिफा किया और जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा था, जो झूठ पे मबनी था, उसको काउंटर किया। पूरी रातें जागते रहे ये हमारे यूथ, जिनका शुक्रिया भी अदा किया गया था। लेकिन जो अवार्ड्स की आपने बात की, ठीक है, बहुत से अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, बहुत से लोग इसके मुस्तहिक थे, लेकिन वहीं पे जब उन्होंने देखा कि उनको तो ठीक मिल रहा है, लेकिन कईयों को तो रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांट दिए गए, ये कहां का जस्टिस है? आप अवार्ड की अहमियत को ही कम कर दिया आपने, उसकी वक़्त ही खत्म कर दी कि जो राह चलता है उसको अवार्ड दे दिया। ये क्या तरीकाकार है? जो मुस्तहिक है ये उनकी इंसल्ट है कि उनको अवार्ड तो मिल रहा है, लेकिन साथ जिसको मिल रहा है वो इसका मुस्तहिक कैसे है? इतनी उसकी वक़्त खत्म कर दी। लेकिन मैं चाहूंगा चेयरमैन साहब एक चीज, कि ये जो बात हमने की है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, इसमें हमें वज़ाहत चाहिए। ये हम हाउस चलने नहीं देंगे जब तक इस पे वज़ाहत नहीं आएगी, क्योंकि ये अवाम का पैसा है जिस पे इन्होंने इश्तिहार छापा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ही नहीं छापी। एक बात मैं करूँ, जहाँ तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ताल्लुक़ है, मेरे आबा अजदाद और मेरे वालिद दे वाज द सिग्नेटरी टू द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए हमारा तो उनके साथ बहुत दरीना ताल्लुक़ है। मिनिस्टर साहब उसका जवाब देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है अवार्ड्स का, प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेता। जब 18th अमेंडमेंट पास हुई थी तो मैं सबको अवार्ड दिया, मैंने खुद नहीं दिया, तो इसलिए बाकी जवाब। चेयरमैन, मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जिस तहम्मुल से बात हमने सुनी, मैं कोई मुतनाज़ बात नहीं करूँगा। दो बातों का जवाब आपने अवार्ड्स के हवाले से, मेरा ख़्याल में उसका जवाब बनता नहीं है। मैं सिर्फ तस्हीह कर दूँ कि कल 200 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शायद 14 या 15 हैं। उनमें से हमारे 8 वो लोग हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में फ़ौरन बाद बैनुल-अक़वामी दौरे पे गए थे, ताकि जो लॉबिंग है उस हवाले से अपना हक़ अदा कर सके। उसमें मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा सेनेट से थी, सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब थे, सेनेटर बुशरा भट्ट साहिबा थी सेनेट से, और बाकी कुछ लोग जो हैं वो नेशनल असम्बली, और वो लोग फैसल सब्ज़वारी साहब जी, जो वज़रा थे 6 या 7 कल सर, ये वो लोग थे जिन्होंने जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में, उसके बाद वज़ीर आज़म ने रवायतन, जो एक रवायत भी है और सर कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है, वो एक छोटी वॉर कैबिनेट नॉमिनेट करते हैं जी, और उसके लिए उन लोगों ने वो रातों को जागते थे, क्योंकि कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी क्रूशल होती थी जिसमें डिसीजन मेकिंग करनी होती थी। तो मेरे ख़्याल में मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने दोस्तों से कि अल्लाह ताला ने आपको एक अजीम फ़तह दी है भारत पे, और मोदी मुँह छुपाता फिर रहा है, और जो उसके अंदरूनी मामलात हैं वो पूरी दुनिया के सामने है, और दुनिया भर में भारत जिस आइसोलेशन का शिकार हुआ, वो एक दफ़ा थम्पिंग और एक दफ़ा डेस्क उसके लिए भी बजा दें। हम तो ये लड़ते रहेंगे, अभी यहाँ से बाद में भी लड़ लेंगे थोड़ी देर बाद। आज यौम आज़ादी के हवाले से हम इकट्ठे हैं, और जो कल का था उसमें जितने शोहदा हैं सर, उनकी फैमिलीज़ को उनको डेकोरेट किया गया है, उनकी बेवगान अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो ज़िंदा हैं। उनके बच्चों ने या उनके वालिद ने या वालदा ने अवार्ड्स दिए। जो ज़ख्मी हुए हैं शदीद इस मार्के में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़े लोग हैं। वो अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दिया है कि हमारे शोहदा की तादाद भी इस दफ़ा बहुत कम है, और गाज़ी जो ज़ख्मी हुए उन सब को कल डेकोरेट किया गया। वो सिविलियंस जिनके घरों पे बमबारियाँ हुई, उन सब को भी अवार्ड्स दिए गए। उनकी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, शहादतें हुई हैं, या वो ज़ख्मी हुए हैं, उनको भी सारे अवार्ड से नवाजा गया। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उन इलाकों में थी,
जिन्होंने बर वक्त इतला पे कि हमला हो सकता है वो इलाके एवैक्यूएट करवाए, उन लोगों को भी सर डेकोरेट किया गया है। मेरे ख्याल में ये चंद चीज़ें ऐसी होती हैं इस पर हमें दिल बड़ा करना चाहिए। ये इस पे अगर हम कंट्रोवर्सी करेंगे तो इसका मतलब है कि हम शायद जो मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से, हमें शायद उस हवाले से कोई थोड़ा सा डिवाइड नज़र आया। मैं मशकूर हूँ सेनेटर फैसल जावेद साहब ने कहा कि आपने सबको किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था सर आंखों पे, और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने ना सिर्फ कौमी असम्बली और सैनेट में बल्कि दीगर फोरम्स के ऊपर भी जिस यूनिटी की पाकिस्तान को ज़रूरत थी, हमने सियासी पुख्तगी का, मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए खुले दिल के साथ तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान की कौज़ के लिए मार्का हक में यक ज़ुबान हो के भारत की जारहियत का जवाब दिया। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ पाकिस्तान भर के उन सियासी ज़ोमा का जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला है। दूसरी बात कही गई कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर किसी एक इश्तिहार में नहीं है, हमारे नोटिस में ये बात नहीं है। जश्न आज़ादी पे मुख्तलिफ़ महकमे, मुख्तलिफ़ तंजीमें, सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे इश्तिहारात देते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मेरी भी और हम सब की दिल आज़ारी है, उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी और उसकी बाबत भी इस हाउस को जवाब दिया जाएगा। सर कोई दूसरी राय नहीं है कि हम इस तस्वीर के नीचे बैठ के अपनी सारी प्रोसीडिंग चलाते हैं, और हम तो गुनाहगार वो हैं जो उनकी सियासी मेरास को भी संभाले हुए हैं और आज नस्ल दर नस्ल जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं। आपने बड़ी सख्त बातें की, नहीं मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, जो तकरीबात का आगाज़ जो हुआ वो जिन्नाह स्टेडियम से हुआ। की जायदादों पे इनके नाम से मंसूब जगहों पे हमले करने वालों में नहीं है। मैंने कहा ये मैं बात नहीं करूँगा, वर्सी में नहीं जाएंगे। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, लेकिन हम सब बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। पाकिस्तान एक दिया हुआ तोहफ़ा है अल्लाह ताला का, उसके हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें ये नसीब हुआ है। और ज़ाहिर है इस कारवान के जो मीरे कारवान हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं। आप हमारा फ़ख्र हैं, आप पूरी कौम के कायद हैं। बहुत शुक्रिया सर। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, हुकूमत का अक़दाम शर्मनाक है। हमें वजाहत चाहिए कि क्यों इश्तिहार से कायद-ए-आज़म को निकाला गया। चेयरमैन सीनेट अब इसकी वजाहत मांगे। इश्तिहार टैक्स पेयर के पैसे से बना।